Hello students, how are you all? Hope you are doing so great, and this is your maths tutor Nitika. So today we are going to do our next topic, which is related to the Argand plane. Now what is Argand plane? A plane in which we represent a complex number geometrically, right? Geometrically means we need geometrically for any figure which we want to represent geometrically, we need two-dimensional figure, right? So for two-dimensional figure, we need x-axis and y-axis. And yes, complex number can be represented in x-axis, on x-axis and y-axis, where x is your real part and y is your imaginary part. So here x-axis always represent the real part and the y-axis always represent the imaginary parts. So let's have the complex number. Z equals to x plus iota y. X, y belongs to R. X-axis represent the real part of a complex number and y-axis represents the imaginary part of a complex number. Okay, तो कोई भी अगर आप नंबर लेते हो, सपोज इफ़ यू आर टेकिंग नंबर 3 + 4 iota. 3 + 4 iota means your x is 3 and your y is 4. So the number will be this number represents 3 + 4 iota. तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है. तो ऐसे प्लेन को हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में क्या बोलेंगे? आर्गन प्लेन. ओके. Now students, I wanted to ask you how a modulus of a complex number can be represented on a Argand plane, right? What I am talking about, as you know that if z equals to x plus iota y, then the modulus of z is square root of x square plus y square. And if I want to calculate the modulus from the Argand plane, how we calculate this and what is the method, what is the theorem behind that, you already knew it, because from 7th onwards you are continuously using this theorem. I am talking about your Pythagoras theorem, one of the most important theorem of mathematics. So what is हाउ टू अप्लाई दिस थ्योरम ऑन द आर्गन प्लेन. अब देखो बेटा, अगर आपके पास कोई नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको बहुत ध्यान से कान खोल के आपने सुनना है. इफ़ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो मैं कहीं पर भी इसको ले लेती हूँ. सपोज दिस इज एक्स प्लस आयोटा वाई नंबर. अब देखो बेटा, ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ और ये लेंथ, ठीक है. अब देखो, ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? x को. एंड दिस पॉइंट इज y इज ए योर इमेजिनरी एक्सिस एंड x इज योर रियल एक्सिस. तो ये जो आपको नंबर मिला है x प्लस आयोटा y, अगर हम इन पॉइंट्स की बात करें, ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी? दिस लेंथ विल बी द y. ये लाइन सेगमेंट ये y होगा और ये लाइन सेगमेंट आपका कितना होगा? ये क्या होगा आपका? x. ठीक है. अब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, और किस तरह से लगानी है? देखो, अगर ये कोई पॉइंट P है और इस P का नाम मैंने रख दिया, ये जो x प्लस आयोटा y था, इसको हमने डिनोट किया पॉइंट P से, एंड दिस इज़ योर ओरिजिन. अब आप ये जानना चाहते हो कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका डिस्टेंस कितना है. मतलब आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट ए लाइन सेगमेंट OP. Now what is the length of OP? As you know it very well, this is the angle 90 degree and this is perpendicular. This is base. Perpendicular plus base equals to h square. So h equals to square root of x square plus y square, जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस. तो मॉडुलस एक्चुअल में है क्या? Modulus of a complex number is the length of the complex number from origin. I am repeating once again. Modulus of a complex number is actually
द लेंथ ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बहुत बार बोला था कि हम ये डिस्कस करेंगे मॉडुलस के बारे में। अभी जस्ट आप एक बार फॉर्मूला लर्न कर लो, अब आपको होप सो मॉडुलस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बेटा, तो मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा से। मॉडुलस क्या है? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? उस कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से लेंथ को। ठीक है, जो हम पाइथागोरस की हेल्प से निकालते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस लेंथ इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका है मॉडुलस। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? सो फर्स्ट फॉर्म इज द ज्योमेट्रिकल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं आर्गन प्लेन। क्या बोलते हैं? आर्गन प्लेन। मीन्स ज्योमेट्रिकली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। सेकेंड फॉर्म इज द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है ये हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसको अभी रुको। नेक्स्ट है विक्टोरियल फॉर्म। विक्टोरियल फॉर्म इज रिलेटेड टू वेक्टर, और वेक्टर आपने पढ़ना है प्लस 2 में, और फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप पढ़ते हो, तो ये अभी फ़िलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट इन योर सिलेबस, बट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर which you are going to study in higher classes, BSc or BTech. Okay, so what are the ways? Geometrical form, second is polar form, and the third is vectorial form. Geometrical form हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर हमने x एक्सिस और y एक्सिस लेना होता है। x को हम रियल बोलते हैं, y हमारा इमेजिनरी है, और वहाँ से हम मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई पॉइंट था तो ये हमारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं पोलर फॉर्म। नाउ व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर? नाउ लेट्स हैव पोलर फॉर्म। लेट मी मेक you clear one thing. One question you can get from inverse of a complex number or conjugate of a complex number. One question, okay? Other questions, most probably your questions are from polar form, because these are the difficult topics for the students also, and जो examiner है उसकी प्रेफरेंस रहती है पोलर फॉर्म में से अच्छा सा क्वेश्चन सेट करने की। ठीक है, सेकंड है एमसीक्यूज काफ़ी कवर हो जाते हैं यहाँ से, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, इसको एक फ़न की तरह आपने लेके चलना है। अगर आप इसको क्रैम करोगे तो यू विल गेट नथिंग, बहुत टफ लगेगा और आंसर्स भी ठीक नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेन मुद्दा है आंसर ठीक निकालना। अदरवाइज़ तो बच्चे क्वेश्चन शुरू तो कर ही देते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन वो आंसर करेक्ट नहीं निकाल पाते। उसको आपने एक गेम की, एक चैलेंज की तरह लेना है कि हमारा आंसर ठीक निकले, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे से इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज के लेक्चर में सिर्फ हम बेसिक्स करने वाले हैं, क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ द पोलर फॉर्म? सबसे पहले ये समझो कि पोलर फॉर्म का मतलब क्या है। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल फॉर्म की, आर्गन प्लेन किया, मतलब ज्योमेट्रिकल फॉर्म का नेम जो आपका रियल में कोऑर्डिनेट एक्सिस था, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हो ना 9th 10th में, कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़े आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वही कोऑर्डिनेट एक्सिस का दोबारा से नामकरण कर दिया, और वो नामकरण क्या किया? आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन का नाम क्या है? जो हमें एक इमेजिनरी एक्सिस देता है, जिसमें हम वाई को इमेजिनरी बोलते हैं, राइट? अब पोलर फॉर्म क्या है? अब देखो, पोलर फॉर्म का मतलब सबसे पहले ये है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की डायरेक्शन का पता करना और उस कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल पता करना। अब देखो ना बेटा, कोई भी अगर पॉइंट यहाँ पर पड़ा है और इस पॉइंट को मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर देती हूँ, तो ये कोई ना कोई एंगल तो बनाएगा ही। किसके साथ? बेस के साथ एंगल बनेगा। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म में हमने एक तो एंगल पता करना है, डायरेक्शन फिलहाल हम नहीं पता करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शंस वाले काम चलते हैं फिजिक्स में। मैथमेटिक्स में हम सिर्फ एंगल पे फोकस करेंगे और प्लस उसकी लेंथ पे फोकस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से कितनी लेंथ है। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, लेंथ तो रिप्रेजेंट कर रही है मॉडुलस को, राइट? अब क्वेश्चन देखो क्या है कि पोलर फॉर्म में एंगल कैसे पता करना है। अब मुझे तो सिर्फ यही पता है, मुझे सिर्फ यही पता है, दिस इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और इन केस अगर ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है तो हाँ, मुझे इन्वर्स निकालना आता है, फिर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बना के
कर दूंगी क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ से पता करें, एंगल कहाँ से पता करें। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बड़ा मज़ा आता है इसको पढ़ने में कि एंगल को पता कैसे करना है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे, वही हम आर्गेंट प्लेन बनाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमने एंगल को कैसे पता करना है, राइट। अब देखो बेटा, सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिया P, और वो पॉइंट कौन सा है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। अब हमने ये पता करना है कि सबसे पहले इस पॉइंट की ओरिजिन से कितनी लेंथ होगी, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, जो हमने अभी रिसेंटली डिस्कस किया है, ठीक है। अब लेंथ पता करने के बाद जब हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना दिया तो मुझे यहाँ पर एक एंगल मिलेगा थीटा। कौन सा एंगल मिलेगा, थीटा, ये वाला एंगल। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक एंगल बनाएगा, किसके साथ बनाएगा, बेस के साथ। दिस इज योर बेस, बेस के साथ उसने एक एंगल बनाया और उस एंगल का नाम क्या है, थीटा। अब हमने ये पता करना है कि ये थीटा क्या है, व्हाट इज दैट थीटा, राइट। तो थीटा हम कैसे पता करेंगे, थीटा पता करने का बहुत ही सिंपल सा मेथड है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी आपने, हाइट एंड डिस्टेंस। इस लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, y, एंड दिस लाइन सेगमेंट इज x, दिस इज y, राइट। अब देखो बेटा, थीटा मुझे तीन तरीके से पता चल सकता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन की वैल्यू पता कर लो, कॉस की और टैन की, यू विल कम टू नो अबाउट द थीटा, अगर मुझे रेशियो मिल जाए, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू perpendicular upon hypotenuse. What is your perpendicular? It is y. What is your hypotenuse? Hypotenuse बेटा भी हमने recently find किया था, which is equal to x square plus y square. Quite simple, okay? So it becomes x square plus y square. अब ये मुझे थोड़ा सा ना बड़ी लेंथी सी ये लग रही है कैलकुलेशन। साइन थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं क्या करने लगी हूँ, मैं नहीं करने लगी हूँ, मैथमेटिशियंस ने क्या किया, ये जो लेंथ थी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको नेम दे दिया रेडियस का, आर। क्या नेम दे दिया, रेडियस। तो इट मीन्स, मैं बताती हूँ आर नाम क्यों दिया उन्होंने, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर, ओके। साइन थीटा इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। अगर मुझे वाई पता है, अगर मुझे आर पता है, तो मैं साइन थीटा निकाल कर थीटा निकाल सकती हूँ, ओके। तो अब इस आर के बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कॉस भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन एच, व्हाट इज योर बेस, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमेशा नेम सेम ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स अपॉन आर। अगर मुझे एक्स पता है, अगर मुझे आर पता है, तो हम थीटा निकाल सकते हैं। सो कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स अपॉन आर, राइट। अब हम टैन निकाल लेते हैं, टैन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, y अपॉन एक्स, ठीक है। अब आ जाओ r पे, कि हमने इसको स्पेशली, r मीन्स रेडियस, क्योंकि हमें r जहाँ पर स्मॉल r दिख गया, दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करता है रेडियस। स्मॉल r का मतलब क्या है, रेडियस, ठीक है। तो अब ये रेडियस कैसे बन गया, इस लेंथ को हम रेडियस क्यों बोल रहे हैं, वाई, ये क्वेश्चन अब इरेज होता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स देखो आर कैसे बना। ये जो आपका पॉइंट था P, ये P पॉइंट था ना, इसकी मैं रोटेशन करवाने लगी हूँ। इसको मैं इस पॉइंट को घुमा कर, देखो ना, जैसे सपोज मेरे पास ये लेंथ सेगमेंट है, ये लेंथ सेगमेंट था OP, इसको मैंने रोटेट करके इधर ले आए, यहाँ पे ले आए, इस OP को हम यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस OP को हम यहाँ पर ले आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में ले आते हैं। सिमिलरली OP को हम फोर्थ में ले आते हैं। सिमिलरली ये OP फिर वापस चला गया, तो देखो क्या बना, क्या बना, सर्कल बना। क्योंकि OP की लेंथ चेंज होने वाली नहीं है, मतलब रेडियस चेंज होने वाला नहीं है, और एक सर्कल का रेडियस ही ऐसा होता है जो कभी चेंज नहीं होता। आप कहीं पे भी उसको शिफ्ट कर लो, आप इसको यहाँ ले आओ, आप इसको यहाँ पर ले आओ, इस तरह से रोटेशन करते जाओ, ये कभी चेंज नहीं होगा। ये देखो रोटेशन करते जाओ इसकी, ये यहाँ पर रख के रोटेशंस करते जाओगे, ये कभी भी चेंज नहीं होगा। तो दिस इज़ द रेडियस। तो ये एक सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है जब आप पॉइंट की रोटेशन करते हो। तो बेटा ये एक सर्कल बन गया है। अगर आपके पास कोई पॉइंट है x प्लस आयोटा वाई, तो इस पॉइंट की जब भी आप मूवमेंट करते जाओगे,
यहाँ पर ले आओ, यहाँ आ गया पॉइंट, फिर मूव करके पॉइंट यहाँ आ गया, यही वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया, यही पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ है ओपी की लेंथ, तो हमेशा रेडियस ही रहेगा, दिस इज़ रेडियस। और आप इस रेडियस को कहीं से भी फाइंड करो, अगर सपोज आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहे हो, इस पॉइंट को थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहे हो, एक्स प्लस ए ओटा वाई, तब भी ये डिस्टेंस तो आपको एक्स ही मिलना है और ये डिस्टेंस वाई मिलेगा। डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होता, चाहे हम यहाँ पर फोर्थ में शिफ्ट हो गए हैं। आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में आई थिंक नॉलेज होगी, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही पढ़ रही हूँ। ये पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव, यहाँ पर एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ठीक है। तो ये जो लेंथ है ये आपकी हमेशा पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ये तो हमेशा ये ही रहने वाली है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो हमने अपने एक पॉइंट को चारों क्वाड्रेंट्स में मूव करवाया और हमें ये पता चला कि ये तो सर्कल बन जाता है और सर्कल का रेडियस वही रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप मॉडुलस बोलते हो, ठीक है। अब एंगल देखो क्या क्या बनता है, जब पॉइंट मूव करता है तो एंगल हमेशा सेम नहीं रहते, इसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि एंगल की मेजरमेंट कैसे होती है, ठीक है। आप लोअर क्लासेज में पढ़ के आए हो, 5th 6th ऑनवर्ड्स आप एंगल बनाना शुरू कर देते हो। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बेस चाहिए होता है और उस बेस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस मीन्स रियल एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस रियल एक्सिस, ठीक है। तो अब आपने बचपन में क्या क्या सीखा? आपने सबसे पहले बनाया 90 डिग्री का एंगल, ये बेटा आपका बन गया है 90 का एंगल, ठीक है, बन गया 90 का एंगल। उसके बाद ये आपका 90 डिग्री का एंगल है। उसके बाद अगर आप इसका हाफ कर दोगे तो 45 डिग्री, इस तरह से एंगल्स चेंज होते जाएंगे। अब देखो एंगल को मैं थोड़ा एक्सपैंड करने लगी हूँ, ये मैंने एंगल बनाया, ये एंगल। अब ये जो एंगल है ये 150 का हो सकता है, 120 का भी हो सकता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट मेजरमेंट। अब क्या कर रहे हैं, देखो अब क्या कर रही हूँ मैं, इस एंगल को और थोड़ा बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ये एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री, इट इज़ 180 डिग्री, राइट। और बड़ा करते हैं, अब ये एंगल कितना बनेगा? यस बोलो। अब बेटा ये एंगल बनेगा हो सकता है ये हो 225 डिग्री, क्योंकि 180 में कुछ प्लस हो रहा है, समथिंग ऐड कर रहे हैं हम। अब ये एंगल कितना है? दिस एंगल, ये एंगल बनेगा एग्जैक्टली 270 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल। हमेशा रियल एक्सिस से ही मेजरमेंट करनी है आपने, क्योंकि आप एंगल की मेजरमेंट कर रहे हो रियलिटी में, और रियलिटी में इस तरह से ही मेजरमेंट होनी है, लेकिन मैथमेटिकली हम उसको चेंज कर देते हैं, और चेंज मैं बताती हूँ कैसे करेंगे। ये कौन सा एंगल है? यस ये होगा 270 प्लस, मान लो कि शायद ये 290 डिग्री हो या 300 डिग्री हो। ये एंगल कितना है? यस ये एंगल कितना है? अब तो बड़ी जल्दी बता दोगे। ये एंगल कितना है? ये एंगल आपका बना है 360 डिग्री। इट मीन्स हमने एक रोटेशन कंप्लीट कर ली है, एक रोटेशन कंप्लीट कर ली है, और पूरी रोटेशन में हमारे पास एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 360। ये आपने 10th तक स्टडी किया हुआ अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कर रहे हैं, इसी रोटेशन को दोबारा से रोटेट कर रही हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने देखो यहाँ से शुरू किया था 0 डिग्री से, फिर 90 पे गए, फिर 270 पे आ गए, फिर 360 पे आ गए, ठीक है। अब मैं दोबारा से रोटेशन कर रही हूँ, 360 पे आ गई हूँ मैं दोबारा। 360 प्लस 90 कितना बना? 450। आगे चले जाओ, 450 से ज़्यादा आ गए, और ज़्यादा आ गए, ये समथिंग आपका बन जाएगा 720, मतलब सेकेंड रोटेशन। ये सेकेंड रोटेशन पे आ गए। अब सिमिलरली हम थर्ड रोटेशन, फोर्थ रोटेशन, फिफ्थ रोटेशन, इनको बोलते हैं रोटेशंस। अगर मैं आपको बोल लूँ sin 30 की वैल्यू निकालो तो बड़ी जल्दी से आंसर आएगा 1/2। अगर मैं आपको बोल लूँ sin 120 की वैल्यू निकालो तो आप सीख लोगे ट्रिग्नो में। sin 420 की वैल्यू
साइन 1420 की वैल्यू, साइन 10,420 की वैल्यू, कितनी भी वैल्यू। लेकिन जब आपके पास कोई एंगल साइन 10,420 आ जाए ना सपोज, तो यहाँ पर रोटेशंस काउंट होती हैं, हम रोटेशंस में घूम रहे हैं। वो सीढ़ियाँ याद करो जो शॉप्स पे स्पाइरल वाली होती हैं इस तरह की, दिस इज़ योर रोटेशन, राइट। तो मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में रोटेशंस चलती हैं, ठीक है। तो उन रोटेशंस का जो बेस है वो ये है, पोलर फॉर्म और ट्रिग्नोमेट्री, जो अभी हमने पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करता है, अभी किया ना रोटेशन उस पी की, इस पॉइंट पी की रोटेशन की ना, जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट करता है तो क्या होता है और कैसे एंगल्स बनते हैं, राइट। तो बेटा देखो, सबसे पहले मैंने पॉइंट लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट की क्या आइडेंटिटी है, यहाँ पर x भी ग्रेटर देन 0 होता है, y भी ग्रेटर देन 0, मीन्स x पॉजिटिव y पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आपका पॉइंट कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ा हुआ है तो आपका जो एंगल होगा थीटा ही बनेगा, योर एंगल इज थीटा, राइट। और यहाँ पर हम दो एंगल्स लेकर चल रहे हैं, मैं बता देती हूँ दो के क्यों लिए हैं। तो जब भी आपका पॉइंट कोई फर्स्ट क्वाड्रेंट में बड़ा होगा तो आपका जो आंसर होगा, जो थीटा होगा, वो 0 to 90 के बीच में होगा, 90 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बड़ी इजीली यहाँ पर थीटा निकाल लेते हैं, राइट। तो अब जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, हमने किया पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, वो चलो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले एंगल डिस्कस करते हैं। और ये जो एंगल है, ये थीटा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मतलब रियल में तो हम एंगल को एंगल बोलते हैं एंगल बोलते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में हम एंगल को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड या फिर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थीटा, थीटा का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड या फिर आर्गुमेंट। तो पेपर में क्वेश्चन यही आएगा, थीटा निकालो, ये नहीं, सॉरी, पेपर में क्वेश्चन ये नहीं लिखा होगा कि एंगल निकालो, दे विल आस्क यू फाइंड द एम्पलीट्यूड, फाइंड द आर्ग्यूमेंट, मतलब वही है, थीटा ही निकालना है, ठीक है। तो ये जो थीटा होगा यहाँ पर, जो अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हो तो आपका जो एंगल होगा वो 0 और 90 के बीच में होगा, राइट। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाते हो तो उससे पहले सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, लेकिन उससे पहले पीछे जो पढ़ के आए हैं वो डिस्कस कर लें। वहाँ पर हमारा साइन थीटा क्या आया था? एक्स अपॉन, नो एक्स नहीं था, वाई था, वाई अपॉन आर। तो वहाँ से वाई की वैल्यू देखो क्या आएगी, वाई आएगा आर साइन थीटा, और हमारा कॉस थीटा किसके इक्वल आया था? एक्स अपॉन आर के, तो एक्स किसके इक्वल आएगा? आर कॉस थीटा। तो अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको x को क्या पुट करना पड़ेगा? आर कॉस थीटा, और y को क्या पुट करना पड़ेगा? आर साइन थीटा। ये याद रखना, x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, ये आया था ना। देन थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ठीक है। तो चलो ये थीटा फिर बाद में निकालते हैं, अब ये थीटा कैसे निकालना हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आ जाओ, पॉइंट को ले आओ सेकंड क्वाड्रेंट में, ये लो सेकंड में आ गए, यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जब पॉइंट आएगा तो वो पॉइंट कैसे होंगे? वो पॉइंट होगा माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई, ऐसा ही होगा ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो एक्स है आपका 0 से लेस होगा और वाई क्या होगा? ग्रेटर देन 0, क्लियर। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आने से क्या होगा कि अगर तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो, पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे अब मैं कहूँ कि इस वेक्टर की लेंथ बता दो, वैसे ये वेक्टर है, वेक्टर भी बोलते हैं, लेकिन अभी आप लाइन सेगमेंट ही लेके चलो, अभी आपको नहीं पता। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस ओपी की लेंथ बताओ मुझे कितनी है, तो आप कैसे निकालोगे? ऑब्वियस आप ऐसे निकालोगे, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे निकलेगी ना ओपी की लेंथ, ऐसे ही निकालोगे ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ब्लंडर मिस्टेक, ऐसे निकलेगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप क्या बोलते हो? रेडियस,
राइट। तो अब ये क्वेश्चन आ गया कि एंगल कैसे बनेगा। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि अगर आपने ये ट्रायंगल बनाई है, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ कि मेरा एंगल तो ये बनेगा, ये एंगल बन गया। अब ये एंगल आपने थीटा नहीं लेना, क्योंकि इस लाइन ने एंगल हमेशा जब भी बनाना है उसने तो रियल एक्सिस के साथ ही बनाना है, मतलब उसने तो ये वाला एंगल बनाना है। थीटा तो मेरा ये रहेगा हमेशा, ऑलवेज। तो ये कौन सा एंगल है, तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल आपका बनेगा अल्फ़ा। कौन सा एंगल बनेगा, अल्फ़ा। इस एंगल का नेम हम देंगे अल्फ़ा, क्योंकि इसको हमने अल्फ़ा नेम क्यों दिया है, अब क्योंकि अगर हम पाइथागोरस थ्योरम के रिलेटेड चलें तो एक्स जो है हमारा वो क्या है, आर कॉस थीटा। थीटा की जगह नहीं, थीटा नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, अल्फ़ा। और वाई क्या आएगा, आर साइन अल्फ़ा। लेकिन हमने तो निकालना है थीटा। थीटा क्यों निकालना है, क्योंकि ये जो लाइन है ये हमेशा रियल एक्सिस के साथ ही एंगल बनाएगी, हमेशा रियल एक्सिस के साथ ही। लेकिन इसने अल्फ़ा ने तो एंगल बना दिया इमेजिनरी, नेगेटिव एक्सिस के साथ, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते रियलिटी में। तो इट मीन्स ये अल्फ़ा हमने निकालना है। तो इस अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, बोलो, ये अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, या फिर ये थीटा किसके इक्वल होगा, बोलो, थीटा किसके इक्वल होगा। सारा एंगल कितना है, 180। तो 180 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, अल्फ़ा। तो जब भी आप सेकेंड क्वाड्रेंट में बैठे होगे तो आपका जो थीटा होगा ना वो 180 माइनस अल्फ़ा होगा, राइट। तो आपका थीटा किसके इक्वल होगा, 180 माइनस अल्फ़ा। हम अल्फ़ा निकाल लेंगे इसके साथ, इस रिजल्ट के साथ, और फिर हम थीटा निकालेंगे। तो वेन एवर यू आर इन सेकेंड quadrant your theta equals to 180 minus alpha. when you are in first quadrant your theta is equal to alpha. ये फर्स्ट में होगा और ये किस में होगा, सेकेंड में, राइट। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट पे। अब चलते हैं पॉइंट को लेकर थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो वो पॉइंट दिखता कैसा है। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका होता है वो होता है, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा पता चल गया ना, अब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, याद रखना क्वाड्रेंट्स में मूवमेंट होती है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए हैं, इसमें हमारा x भी लेस देन 0 होगा और y भी हमारा लेस देन 0 होगा, ठीक है। एज यू कैन सी, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, 9-10 में पढ़ के आए हो अच्छे से। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स है, यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स है, तो दिस पॉइंट विल बी द नेगेटिव। अब आ जाओ कि ये जो पॉइंट है वो रियल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और इसको भी रिमूव कर दूँ तो ये पॉइंट यहाँ पर, तो इसने कितने डिग्री का एंगल बनाया, तो ये देखना है। तो ये अगेन फिर एंगल क्या बनाएगा, थीटा। दिस एंगल विल बी द थीटा। तो ये आपका हो गया थीटा, ठीक है, दिस एंगल। अब हमने ये थीटा निकालना है कि ये कितना होगा। अब जैसे सेकंड में थे, सेकंड में थीटा कैसे निकला, 180 माइनस अल्फ़ा करके। अब थर्ड में कैसे निकालोगे आप। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है, इस वेक्टर की, बार बार ना वेक्टर निकलता है मेरे मुंह से, इस ओपी की अगर हमने लेंथ निकालनी है तो ओपी की लेंथ के लिए मुझे ये चाहिए होगा, और फिर हम यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि हमें ओपी की लेंथ निकालनी है, तो दिस लाइन सेगमेंट विल बी रिप्रेजेंट, ये हमारी लाइन है वाई और ये हमारा है एक्स, और ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि आपने तो इस ओपी की लेंथ निकालने के लिए ये ओपी इस एक्स डैश के साथ एंगल बनाएगा अल्फ़ा। एज यू कैन सी दिस इज़ योर लेंथ y एंड दिस इज़ योर लेंथ x। तो अगर हमने इसकी लेंथ निकालना है, OP की लेंथ अगर हमने फाइंड करनी है तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज पर पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बनेगा यहाँ पर एंगल विद द इमेजिनरी विद द नेगेटिव एक्सिस। तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x किसके इक्वल होगा, कॉस अल्फ़ा, एंड y इक्वल्स टू आर कॉस अल्फ़ा, y इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा हमने फाइंड करना है, हाउ टू गेट डैट अल्फ़ा, लेकिन क्योंकि हमारा क्वेश्चन अल्फ़ा का नहीं है, हमने फाइंड करना है थीटा, क्योंकि थीटा ही रियल एक्सिस के साथ बनेगा। तो यहाँ पर जो थीटा है, देखो थीटा क्या है, यहाँ तक अगर आप बात करोगे,
यहाँ तक, ये हो गया आपका 180, 180 प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो किसके इक्वल होगा, 180 प्लस अल्फ़ा या फिर पाई प्लस अल्फ़ा। थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फ़ा इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा देखो यहाँ से हमें क्लियर क्या हो रहा है कि अगर तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बैठे हैं तो हमारा थीटा ही अल्फ़ा है। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हमने थीटा निकालना है तो हमें 180 माइनस अल्फ़ा करना पड़ेगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बैठे हैं और हमने थीटा निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 180 प्लस अल्फ़ा। अब इस पॉइंट को हम लेके जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो चलें फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा जो पॉइंट है वो कैसा दिखता होगा, उसमें x तो मेरा पॉजिटिव होगा और y मेरा क्या होगा, नेगेटिव। मीन्स x ग्रेटर देन 0, y इज़ लेस देन 0। तो अब सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने देखना है एंगल। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं एंगल, ये पॉइंट रियल एक्सिस के साथ, हमेशा एंगल रियल एक्सिस के साथ ही बनाना है, मैं बार बार बोल रही हूँ। ये पॉइंट, ये वाली जो लेंथ है OP, ये जो लाइन है OP रियल एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, ये एंगल बनेगा आपका, ये एंगल। देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया मैथमेटिक्स, कि हर बात पे एक लॉजिक निकल के आ रहा है, कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, सिर्फ आपने समझना है। यहाँ पर अपना दिमाग खोलो और अच्छे से समझो। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, आई मस्ट से। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये पढ़ाने में। अब तुम लोगों को पता नहीं मज़ा आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर इन्जॉय करोगे तभी समझ आएगा, नहीं तो फिर सोचते रहोगे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं मैम, कभी थीटा लिख रहे हैं, कभी अल्फ़ा लिख रहे हैं, है ना, ऐसे सोचते होगे अगर नहीं समझ आ रहा तो हमने ये एंगल निकालना है, दिस इज़ माई थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा से पहले मुझे तो चाहिए, क्या चाहिए, मुझे तो OP की लेंथ चाहिए। ये OP की लेंथ कैसे निकलेगी, OP की लेंथ मुझे आती है निकालनी, पाइथागोरस थ्योरम। यस, दिस इज़ योर x, दिस इज़ योर y एंड दिस इज़ योर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। लेकिन जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, वहाँ पर मेरे लिए एक नया एंगल निकल के आया, और वो एंगल क्या होगा, मेरा अल्फ़ा। क्या होगा, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। देखो कितनी सुंदर पिक्चर बन गई है, दिस एंगल इज़ अल्फ़ा, एक पूरा सर्कल बन गया। अब ये अल्फ़ा मुसीबत, इसको कैसे निकालें, तो लगाओ दिमाग, कैसे निकलेगा ये अल्फ़ा। अल्फ़ा तो निकालना ही नहीं है लॉजिकली, तो अल्फ़ा नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, थीटा चाहिए। मुझे हमेशा थीटा ही निकालना है, लेकिन मेरे एंगल जो बन के आ रहे हैं, एंगल जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो बन रहे हैं अल्फ़ा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही, सेकंड में अल्फ़ा बना, थर्ड में अल्फ़ा बना, फोर्थ में भी अल्फ़ा बन रहा है। NCERT खोल के देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो अल्फ़ा निकाल लेंगे हम। यहाँ पर x किसके इक्वल होगा, अगेन x इक्वल्स टू आर कॉस अल्फ़ा, y इक्वल्स टू आर साइन अल्फ़ा, एंड थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बेटा, ये देखो 90 डिग्री, दिस इज़ 90, इसको हम बोलेंगे π/2, दिस इज़ π/2, ये वाली लेंथ π/2, ये वाली लेंथ π/2, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस π/2 270, क्या बन गया, 270। 270 में हम ये अगर अल्फ़ा प्लस करते हैं तो हमने निकालना है 270, मतलब हमने ये थीटा निकालना है, जो थीटा है हमारा 270 है। तो ये कैसे निकलेगा, ये भी तो आपका π/2 ही तो है, ये भी तो π/2 है। तो क्या करोगे, सारे में से क्या माइनस कर दोगे, 2π में से सारे में से, सारा मतलब 360। अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री किया नहीं है तो आप हैप्चुअल नहीं है उसको लिखने के। 360 में से क्या माइनस करोगे, अल्फ़ा। 360 का मतलब है 2π माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठे हो और आपको क्वेश्चन आ गया कि आप थीटा निकालो, तो सबसे पहले अल्फ़ा निकालोगे और अल्फ़ा को 2π में से माइनस करोगे, तब आपको थीटा पता चलेगा, राइट। So well students, in the end what we have learned today, if your complex number is in first quadrant, your theta will be alpha। चाहे अल्फ़ा फाइंड करो चाहे थीटा फाइंड करो, वन एंड द सेम थिंग। मतलब आपको कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर इन सेकेंड क्वाड्रेंट, योर थीटा विल बी पाई माइनस अल्फ़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू फाइंड अल्फ़ा, फिर आप कन्वर्ट कर दोगे उसको, पाई में से माइनस करोगे, यू विल गेट योर थीटा। इफ़ यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट, योर थीटा विल बी पाई प्लस अल्फ़ा।
तो वो सारा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है कि कैसे आया है. इफ़ यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट योर थीटा विल बी 2 पाई माइनस अल्फ़ा. नाउ हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स, हाउ टू हैंडल द questions of complex numbers of polar form. So if z equals to x plus iota y, तो मैं एक जर्नली लिख रही हूँ सभी क्वाड्रेंट्स के लिए. then x equals to r cos theta, x equals to r cos theta, y equals to r sin theta. ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सबसे पहले हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, x और y को कन्वर्ट करेंगे. उसके बाद हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे. थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x. तो बेटा ये आपने फॉर्मूलाज लर्न करने हैं. थीटा आपका किसके इक्वल होगा? y अपॉन x के. तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे. अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. आज के लिए सब बस इतना ही कि अगर फर्स्ट में हो तो थीटा अल्फ़ा होगा, सेकंड में हो तो थीटा पाई माइनस अल्फ़ा होगा. इफ़ यू आर इन थर्ड क्वाड्रेंट थीटा विल बी पाई प्लस अल्फ़ा, एंड इफ़ यू आर इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा विल बी 2 पाई माइनस अल्फ़ा. और यहाँ पर ये है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए. दिस इज़ फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट. इफ़ यू आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड थर्ड और फोर्थ में अकॉर्डिंगली अल्फ़ा के अकॉर्डिंग आप चलोगे. इफ़ z इक्वल्स टू एक्स प्लस एयोटा वाई, एक्स को क्या पुट करना है? आर कॉस थीटा, वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा, एंड थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई अपॉन एक्स. तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू भी लिखोगे. आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. r square, r equals to square root of x square plus y square. So this is all about your polar form. In the next video we are going to cover the questions related to polar form and you are going to enjoy this session. Thank you.